Hello students. So till now we have studied about object-oriented programming, its basics, and procedural-oriented programming. Also we have seen the features of OOPs and characteristics of object-oriented programming. And in the last class we have seen the difference between object-oriented programming and procedural-oriented programming. So let us see our first C++ program and what are the structure of it, and we will see all the codes line by line. So let us start with the structure of a C++ program. So a C++ program structure is in a specific and particular manner, and it is divided into three sections. The first one is standard library section, the second one is main section, and the third one is function body section. So what are these three sections, ये क्या क्या है वो let us study in depth. So let me first standard section is these two, the header file and using namespace. The main body function is this, from int main to closing bracket, and the function body is in this program there is no function body, only a main. But when we will use the multiple function, then we will see the function body. तो एक एक करके हम लोग स्टार्ट करते हैं कि क्या फंक्शंस होते हैं. सो द फर्स्ट वन इज स्टैंडर्ड लाइब्रेरी सेक्शन, जो सबसे टॉप मोस्ट में होता है वर्ड मेन से पहले. सो व्हाट इज स्टैंडर्ड लाइब्रेरी सेक्शन? सो हैज इंक्लूड आईओ स्ट्रीम and using namespace std. These all are standard library functions. तो has include क्या है? So it is a specific preprocessor command that effectively copies and pastes the entire text of the file specified between the angle bracket into the source code. तो हम ये समझ लेते हैं कि अगर किसी तरह का कोड है वो हमें बार बार यूज़ करना है, तो उसे हम मेमोरी में रख देते हैं, या बोलते हैं कि हम वी स्टोर इट इन द कमांड प्रॉम्प्ट, सो दैट नॉट इन कमांड प्रॉम्प्ट, वी स्टोर इट इनटू द बट स्टैंडर्ड फाइल्स. एंड क्या कहते हैं कि जब भी हमें कॉल करना होता है वी कॉल दैट फंक्शन. सो यहाँ पे क्या है, आईओ स्ट्रीम को हम एंगल ब्रैकेट में लिख रहे हैं. दैट मीन्स वी आर कॉलिंग द आईओ स्ट्रीम जो है, वी आर कॉलिंग all the functions and all the functionalities which are stored in IO stream. तो जैसे C में हम लोग functions का यूज़ करते थे. अगर हमें ऐड करना दो नंबर्स को, तो हम क्या करते थे, एक ऐड फंक्शन बनाते थे. अब जब भी किसी को ऐड करना था, हम ऐड फंक्शन में पैरामीटर पास करके उसे कॉल कर लेते थे. सिमिलरली यहाँ पे क्या, हेडर फाइल में क्या होता है, जैसे IO stream, conio, stdio एंड graphics.h समथिंग, बहुत सारा हेडर फाइल्स होता है. तो हर हेडर फाइल में क्या होता है कि कुछ कुछ पर्टिकुलर थिंग्स आर बीन स्टोर्ड इन दैट हेडर फाइल्स, एंड व्हेन इट इज नेसेसरी देन द यूज़र कॉल्स इट डायरेक्टली बाय writing it into the angle bracket and followed by hash include and the angle bracket. So the file IOStream, which is a standard file that should come with the C++ compiler, and in short it is a short form of input output stream. तो जहाँ पे भी इनपुट आउटपुट का यूज़ करते हैं हम लोग आईओ स्ट्रीम यूज़ करते हैं. कंसोल इनपुट का यूज़ करते हैं तो कॉर्नियो का यूज़ करते हैं कंसोल इनपुट आउटपुट के लिए, और स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट के लिए stdio का यूज़ करते हैं. ऐसा बहुत सारा है. तो वी विल स्टडी ईच एंड एवरी header files in depth in the upcoming lectures or upcoming unit. So this command contains code for displaying and getting an input from the user. तो IO stream क्या करता है, it helps in getting and displaying the inputs from the user. Okay, so the second line is using namespace std. So namespace is a prefix that is applied to all the names in a certain set, and IOStream file defines two names used in this programming, cout and endl. तो एक बार हम लोग फिर से यहाँ प्रोग्राम देख लेते हैं. यहाँ पे cout है एंड endl है. cout यूज़ होता है किसी भी सेंटेंस को या वर्ड या स्ट्रीम लाइन को आउटपुट के लिए, जो डिस्प्ले करवाने के लिए, और एंडल यूज़ होता है एंड लाइन के लिए. सो फॉर दीज टू कमांड्स वी आर यूजिंग हेयर आईओ स्ट्रीम एंड नेम स्पेस. सो दिस ये यूजिंग नेम स्पेस std says that use the cout and endl tools for the standard toolbox.
तो जो भी स्टैंडर्ड टूल बॉक्स है एस टी डी, यहाँ पे जो दिस इज द स्टैंडर्ड टूल बॉक्स एस टी डी, तो ये स्टैंडर्ड टूल बॉक्स किसके लिए यूज़ करने बोल रहा है, सी आउट के लिए और एंडल के लिए, ठीक है। तो लेट अस मूव टू द नेक्स्ट लाइन फॉर दिस कोड। सो द थर्ड वन इज मेन फंक्शन। तो जितना भी कोडिंग होता है, जो भी कोड्स हम करते हैं, सारा हम लोग मेन फंक्शन के ही अंदर पे रखते हैं। सो मेन फंक्शंस का फंक्शनैलिटी क्या क्या होता है, इसके अंदर हम किसी वेरिएबल को डिक्लेयर कर सकते हैं या कॉल कर सकते हैं, ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हैं, क्लासेस, इनहेरिटेंस, जो भी होता है वो सारा हम लोग मेन फंक्शन अंदर पे ही करते हैं। ओके, तो लेट अस सी द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ ऑल द सी प्लस प्लस प्रोग्राम इज द मेन फंक्शन। तो मेन फंक्शन से ही हम स्टार्ट करते हैं। So this function is called by the operating system when your program is executed by the computer। जैसे ही ऑपरेटिंग सिस्टम पे हम कंपाइल करते हैं किसी भी कोड को, तो सबसे पहला रन कहाँ से होता है, इंट मेन से, ना कि किसी क्लास से, नहीं किसी ऑब्जेक्ट से। सबसे पहला लाइन जो रन होता है वो होता है इंट मेन। देन this opening braces signifies the start of a block of code and closing braces signifies the end। तो स्टार्ट के लिए हम ये ओपनिंग ब्रैकेट यूज़ करते हैं और एंड के लिए क्लोजिंग ब्रैकेट यूज़ करते हैं। दिस इज सेम एज वी वर यूजिंग इन सी। सो देयर इज नो चेंज इन दैट ब्रैकेट्स। एंड द फंक्शन बॉडी के अंदर का क्या क्या यूजेस होता है, क्या क्या कोड्स हम लोग इंसर्ट करते हैं, तो वो देख लेते हैं। द नेम सी आउट इज शॉर्ट फॉर्म ऑफ कैरेक्टर आउटपुट। कैरेक्टर आउटपुट, जितना भी तरह का कैरेक्टर हमें आउटपुट में देना है, जो भी प्रिंट कराना है, तो हम क्या करते हैं, सी आउट यूज़ करते हैं। एंड इट डिस्प्लेज वॉट एवर इज बिटवीन द एंगल ब्रैकेट। एंगल ब्रैकेट के अंदर पे जितना भी डबल कोट्स में होता है वो एज इट इज़ प्रिंट हो जाता है। और एंगल ब्रैकेट के अंदर में अगर कोई वेरिएबल डालते हैं जैसे सी, देन इट प्रिंट्स द वैल्यू ऑफ सी। सो सिंबल सच एज ये एंगल ब्रैकेट कैन ऑल्सो बिहेव लाइक फंक्शंस एंड आर यूज्ड with the keyword cout। So the return keyword tells the program to return a value to the function int main। Since the function is we have declared the function as int main, yes, we are here declaring the function as int main, so we have to return anything, either it is a 0 or any value, particular value। so यहाँ पे हम लोग जब int पे डिक्लेयर किए तो कुछ ना कुछ रिटर्न करना होगा, तो हम क्या करते हैं, रिटर्न करते हैं एक 0, रिटर्न 0। So after the return statement, execution control returns to the operating system component that launched the program। So when the main is completed with its execution, तो क्या होता है, main के बाद से फिर से operating system को चांस मिलता है कि वो जो भी execution है next वो करे। So execution of the code terminates here। और यहाँ पे जो main bracket close हो जाता है जब मेन फंक्शन ओवर होता है, तो वहाँ पे सारा एग्जीक्यूशन ख़त्म हो जाता है। सो ये एक बेसिक प्रोग्राम का स्ट्रक्चर था। तो आई होप कि सभी लोग को समझ में आ गया होगा कि क्या करना है, क्या नहीं करना है। सो ये अभी तक जितना भी हम लोग कोड करने जा रहे हैं उसमें हर एक कोड में ये 4-5 लाइंस जो हैं, एक बार और से हम लोग देख लेते हैं सीधा। ये हैश इंक्लूड, ये यूज़ होना है, यूजिंग नेम स्पेस यूज़ होना है, मेन, रिटर्न स्टेटमेंट एंड क्लोजिंग ब्रैकेट, ओपनिंग ब्रैकेट। यहाँ पे मेन का कंटेंट्स में चेंजेस हो सकता है। अगर लेट सपोज दैट वी हैव टू राइट अ कोड फॉर डिस्प्लेइंग पैलिंड्रोम नंबर, तो उसका अलग कोड होगा। वी हैव टू फाइंड एवरेज ऑफ 5 नंबर्स, उसका अलग कोड होगा। वी हैव टू इनहेरिट 2-3 क्लासेस, देन उसका अलग कोड होगा। तो इसी तरह से क्या होगा कि मेन के अंदर का कंटेंट्स चेंज होगा, बट बेसिकली जो स्केलेटन ऑफ द प्रोग्राम में है, it remains just like the same we have seen here। So that's all for this lecture। we start a new data type called as structure। जैसा int होता है, char होता है, उसी तरह से एक new data type होता है structure। we will start in the next lecture। so stay tuned for this। thank you।